So children, in this video I am going to discuss about the onset of the monsoon and its withdrawal, that is the beginning of the monsoon. Before I begin with this lecture, I would like to revise once again whatever we have discussed in the previous videos, in which I told you about the factors which affects the climate of India, that is the latitude, altitude, the pressure and the winds. And before that I also told you about the climatic controls. In the climatic controls I told you about the 6 major controls, that is the latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and the relief features. Now after this I told you about the Indian monsoon and what are the various factors which affects the monsoon of India, the climate of India, in which I told you about the 5 points, that is the differential heating and cooling of land and water, about the Indian intertropical convergence zone ITCZ. After that I told you about the high pressure area, that is which is created in the east of towards the east of Madagascar. Then the Tibetan plateau. After last point which I discussed about the westerly jet streams and the tropical easterly jet streams also. These are the various mechanism which creates the monsoon type of climate in our country. And last but not the least, in the last video I discussed about the southern oscillation and El Nino, which also plays a pivotal role in the monsoon type of climate in our country. Now I am going to tell you about the onset of the monsoon, that is the beginning of the monsoon. Okay, so I told, first of all I would tell you how and what are the various ways the monsoon enters inside our country and at what time, which place, and what type of weather situation it creates, atmospheric conditions it creates in different types of in different regions of our country. So children, this monsoon winds, these are the pulsating winds. These are the pulsating winds, wind means which are only seasonal, which comes at a particular period of time and goes back after a certain period of time. In comparison to the trade winds, these trade winds are the permanent winds which keeps on flowing in a particular region. Now these monsoon winds are affected by the different atmospheric condition and which are encountered by it also, and side by side on its way towards the tropical seas, when it flows towards the tropical seas, the atmospheric condition which are created over it, it's encountered by that. Now children, the duration of the monsoon is between 100 to 120 days, that is it starts from early June and ends till mid September. Now when these monsoon winds reaches in our country, there is a normal rainfall, and after that, after normal rainfall, that is which is also called as the pre-monsoon. Pre-monsoon is the first shower of the monsoon, okay, जिसमें बहुत थोड़ा पानी बरसता है. After that what happens when the monsoon reaches, there is an increasingly suddenly the constant rainfall. Constantly the rain falls for several days, which is known as the burst of the monsoon. Burst of the monsoon means the continuous rainfall for several days, that is called as the burst of the monsoon, and it can be distinguished from the pre-monsoon showers. Pre-monsoon showers means monsoon आने से पहले जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है उसको प्री मानसून शावर्स बोलते हैं, और जब मानसून आता है तो ज़बरदस्त पानी लगातार जब बरसता है काफ़ी दिनों के लिए, हैवी रेन डाउनपोर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द monsoon. That means that monsoon has reached in our country. Now these monsoons, they arrives at the southern tip of the Indian Ocean, okay, by the first week of June. First week of June में ये हमारे southern tip को hit कर जाता है, लेकिन ये इसकी दो ब्रांच होती है, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस ऑन द मैप ऑफ अ कंट्री. ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज द, यू कैन सी द मैप ओवर हियर. नाउ अब आप देखोगे ये जब मानसून आता है, ऑलरेडी इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, ITCZ जोन से ईस्ट ऑफ मडागास्कर से ये जब विंड्स आती हैं, लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे जब क्रिएट होता है, डबल लो प्रेशर हो जाता है ड्यू टू ITCZs की वजह से, तो यहाँ पे ये जो कोल्ड
हॉट हाई प्रेशर एरियाज़ है, इसकी वजह से यहाँ पे विंड्स जो है ये फ्लो होना शुरू कर देती है। तो ये दो डायरेक्शन में जाती है, एक तो ये अरेबियन सी की तरफ जाती है, दूसरा ये डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की तरफ ले लेती है। सो द विंड्स विच मूव्स towards the first of all it brings the first showers to in the southern tip of our country Indian peninsula। सबसे पहले ये southern tip पे लेके ये hit करता है in the first week of June। फिर after that it proceeds towards the Arabian Sea and towards the Bay of Bengal। यहाँ पे हिट करने के बाद ये दो जगह टकरा के चला जाता है, ठीक है। मानसून जो सदर्न टिप पे होने के बाद जो है अरेबियन सी ब्रांच जो है यहाँ से 10 डेज में फिर ये मुंबई पहुँच जाती है। ऑन 10th जून आपने सुना है, ऑन 10th जून इट रीचेस टू मुंबई, वहाँ पे शावर होती है, ठीक है। 10 डेज के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10th जून तक इट रीचेस टू बॉम्बे एंड this is fairly a rapid advance, quick advance it is within 10 days। and the Bay of Bengal, ये जो Bay of Bengal में ब्रांच होती है ये भी जो है रैपिडली एडवांस करती है। और अब देखो ये इसका डबल हो जाता है, ये यहाँ Bay of Bengal से भी मॉइस्चर लेडन विंड्स को अपने साथ लेती है। लेने के बाद ये भी जो है ये आसाम में पहुंच जाती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून यहाँ पे। अब आपको मालूम है ये यहाँ से टर्न कर जाती है, वाई? बिकॉज यहाँ पे भी हमारे खासी नागा हिल्स हैं, जंतिया हिल्स हैं, यहाँ पे नागा हिल्स हैं। तो ये यहीं से टकरा के ये वापस हो जाती है, ये आगे नहीं जा पाती है, ठीक है, टुवर्ड्स चाइना या भूटान एंड ऑल, ये यहीं से टर्न कर जाती है। सो this Bay of Bengal after reaching Assam in the first week of June, lofty monsoon due to these lofty mountains it causes monsoon winds to deflect towards the west region over the Ganga plains, and by the mid of June the Arabian Sea branch of the monsoon it arrives at Saurashtra। so ये यहाँ पे पहुँच के फिर ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू अरावली हिल्स और ये सौराष्ट्र पहुँच जाती है जहाँ पे ये एमपी एंड ऑल रीजन में रेनफॉल करती है, गुजरात एंड ऑल रीजन में करने के बाद आफ्टर दैट ये दोनों जाके मीट करती है गंगा प्लेन्स पे, ठीक है। गंगा प्लेन्स पे ये मर्ज कर जाती हैं। आफ्टर मर्जिंग इन द गंगा प्लेन्स द दिल्ली रिसीव्स द मॉनसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से बाय 29th of June टेंटेटिव इट रीचेस दिल्ली एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इट रीचेस टूवर्ड्स उत्तर प्रदेश पहुंच गया, पंजाब पहुंच गया, हरियाणा पहुंच गया, पार्ट ऑफ राजस्थान पहुंच गया और ये जम्मू एंड कश्मीर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन ये लद्दाख की तरफ नहीं जाता, वाई? बिकॉज यहाँ पे हिमालयाज है, ये यहीं से टकरा के यहीं बरस के वापस आ जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट ओवर हियर, बिकॉज यहाँ से जो विंड्स आती हैं इट इज़ अ वेरी कोल्ड, जो कि ये स्नो लेके आती हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द ऑनसेट ऑफ द मानसून, किस तरह से मानसून जो है विंड्स चलती हैं। वंस अगेन इन अ वेरी शॉर्ट वे I am going to tell you how the monsoons reaches India. So first of all I would tell you what is pre-monsoon and what is monsoon. Pre-monsoon means the first shower of the rainfall, जिसमें ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लेकिन जब प्रॉपर मानसून आता है there is a burst of monsoon, जहाँ पे कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली several days एक साथ जब पानी बरसता रहता है, that is called as the burst of the monsoon, and this can be distinguished from the pre-monsoon showers. So first of all, when this high pressure winds arrives, first of all it arrives at the southern tip of our country, from where it gets deflected into two parts, one is towards the Arabian Sea and other one towards the Bay of Bengal. So यहाँ पे ये 1st of June पे स्ट्राइक करती है, आफ्टर दैट इट रीचेस टुवर्ड्स मुंबई ऑन 10th जून, ये 10th जून को यहाँ पहुँच जाती है। आफ्टर दैट ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद सौराष्ट्र रीजन में बरसात करती है, गुजरात एंड ऑल हैवी डाउनपोर होता है। उधर आपको बताया कोस्टल एरियाज में भी काफ़ी हैवी रेनफॉल करती है। नाउ ब्रिंग्स रेनफॉल टू द मध्य प्रदेश एंड ऑल, एंड बाय द 29th of June इट रीचेस दिस दिल्ली एंड यूपी एरिया। नाउ दिस बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है ये भी अप टू इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इट रीचेस आसाम, और जब ये जाती है तो बे ऑफ बंगाल से भी विंड्स, कोल्ड विंड्स ले जाती है अपने साथ, मॉइस्चर लेडर विंड्स, एंड ये आसाम में सबसे पहले बारिश करती है। यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ गैरो, खासी एंड जंतिया हिल्स यहाँ पे हैं, इसकी वजह से डिफ्लेक्ट होकर ये टुवर्ड्स वेस्ट मूव करती है एंड यहाँ पे ये आके गंगा प्लेन्स में मर्ज हो जाती है। एंड व्हेन इट गेट्स मर्ज इट मूव्स टुवर्ड्स दिल्ली,
बाय 29th of June ये दिल्ली में रेनफॉल करती है, एंड धीरे धीरे इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स कश्मीर and brings a heavy rainfall in these regions. This is the onset of the monsoon. Now we am going to tell you about the withdrawal of the monsoon. अब ये जो है जब ये रेनफॉल लेके भी आती है तो विड्रॉ भी होती है. विड्रॉ कैसे होती है? जैसे अब यहाँ पे करने के बाद बाय द मिड ऑफ सेप्टेम्बर, ओके, इट मूव्स बैक नाउ, इट मूव्स बैक ऑफ मिड ऑफ सेप्टेम्बर, ये वाला रीजन छोड़ के अब ये वापस आती है तो इधर जो है आप देखोगे ये इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं. इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, एंड इट बिगन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट. सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से ये वापस आती है बाय द अर्ली सेप्टेम्बर. बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ. अक्टूबर के आधे तक ये पूरा इस रीजन से बिल्कुल खाली हो जाता है. ठीक है, northern half of the peninsula, and withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid, and from the southern half of the peninsula से भी ये retreat कर जाती है, and by early December monsoon has withdrawn from the rest of the country. अब क्या होता है जब ये withdraw करती है तो इधर से जो ये winds आती हैं ये भी इसको push करती है नीचे की तरफ. ठीक है, ये तो यहाँ से ये ड्राई विंड्स हो जाती हैं, ये वापस चली जाती हैं, लेकिन जब ये जाती है तो अगेन ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल से अगेन वाटर उठाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे हिट करती है टुवर्ड्स दिस कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ऑल, और हिट करके फिर ये वापस अगेन केरला में बरसात करके फिर ये वापस चली जाती है. सो आप देखोगे बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पूरा मानसून जो है अपने पेनिनसुला से हट जाता है, एंड बाय दिस टाइम ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द कंट्री, these are under the influence of the winter monsoon. ये winter monsoon आप एक्सपीरियंस करोगे जब ये जाती है. सो अब आप देखोगे कि यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स एक्सपीरियंसेस बोथ, जब ये पहले स्ट्राइक करती है इन द ऑनसेट ऑफ द मानसून तब भी आइलैंड में बरसात करके जाती है. देखिए अंडमान में भी, बे ऑफ बंगाल में भी, क्योंकि ये ऑनसेट ऑफ मानसून है, और जब वापस जाती तब भी ये पानी दे के जाती है. तो 6 मंथ्स यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है. दिस इज ऑल अबाउट द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉवल. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सीजन्स. इससे पहले जो आपको पढ़ाया था मैंने सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे जिसमें सारी क्लियर हो गया था. अब मानसून आपको पता चल गया, मानसून कैसे आता है, कैसे जाता है. अब आपको एक एक करके सीज़न समझाऊंगी कि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स क्या कौन से होते हैं, क्या वेदर कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड ऑल, और क्या हमारी वेजिटेशंस और वेजिटेशंस एज वेल एज फूड, eating habits and all, which is going to be discussed in the next video. That's all. So go through page number 31 also for this, the onset of monsoons and its withdrawal.